Assalamu alaikum students. Today we will continue the last topic, that is an array. So let's revise quickly. So simple definition is an array is a collection of data of the same data type. Means if we are entering a whole number, so like 7, like 9, other whole numbers are 5, 2, 5, 7. So then it should contain only whole numbers, okay, only same data type, that is integer. It should not contain any decimal number or any character value. So you can see here the first row, that is integer type array, integer data type, okay. And we can see here the number, that is 6, 5, 9, 2, 5, 0, 2, 1. These are all belong to the same data type, that is integer. Now next is another array, that is element are R, A, G, E, Y, D, F, A. So these are all characters, and this one is the character simple character data type, okay. Here is not include any integer, not include any decimal point value. This is only a character data type array, okay. So this is also an array. Now next is another array, that is 6. First is 6, this is integer. Second is 3.5, 3.4. So this is decimal point, okay, and this is floating point. The third is A, this is alphabet, and this is a character data type. Next is 4.0, so this is floating point. 5 is an integer. H is a character. 9 is a integer. 1.1 is a decimal value or floating point, okay. So this is not an array, but it is a mix-up combination of different data type, okay. So this is not an array, okay. So we have already learned to initialization in an array. So now next is array. Here is a location after declaration any variable or array. So after declaration the memory has also been created. This is like memory location, okay. So here this is called the elements. 5, 7, 17, 8, 12, 19. These are the elements of an array, values we can say also, okay. And the array name is age, okay. Index means location that start with 0, okay. Always index start with 0. Index we have already learned about the index. Index is also called the location of the of an array, okay. So 0 starting with always 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay. This one is the index, and this one is the elements, and this is the age of an array, okay. So now come to the input and print statement in an array, how to input and how to print. So first declare our variable, that is int, okay, age, and size of array. My size of the array is 10 ages I want to take in this program, okay. So now you can see here how many after declaration an array. So the after declaration of an array, the location has also been created here, okay. So here are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. So size of the array is 10, so division are total 10. And now index number. So index number start with which number? Index number start with 0, always 0, okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 and yes, so total 9. Okay, so starting with 0 and end with 9. Okay, so total size of the array is 10. Okay, so now how to input. For example, if you want to insert a number in a specific position, अगर आपको insert करवाना है number, input करवाना है number कोई specific position पे, like I want to insert here a number, which position that is, I think so 9th position. So here is the location, that is 8. Okay, so जैसे ही आप करवाओगे यहाँ पे, हम इसको कैसे लिखते हैं इनपुट में, हम लिखेंगे यहाँ पे here input statement, and then you will write the variable name, that is age, and then you will put here a square bracket on, start and off. Okay, so here you will write 8 position. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 and the location index number is 7, so you will write here 7. Okay, 8 पोजीशन पे मुझे करवाना था इंसर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपसे मांगेगा क्या मांगेगा आपसे यहाँ पे, यहाँ पे मांगेगा, आप जैसे ही आप इसको रन करवाओगे प्रोग्राम को, तो वो आपसे क्या मांगेगा, आपसे इनपुट मांगेगा और आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, आपको वैल्यू 5 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा 5 वैल्यू इंसर्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सारे ही, मुझे पूरी इंडेक्स फिल करवानी है, ठीक है, मुझे स्पेसिफिक पोजीशन नहीं करवानी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बार बार इनपुट करवाना है, इनपुट मुझे 0 पोजीशन पे भी करवाना है, इनपुट मुझे 1 पोजीशन पे भी करवाना है इसी तरीके से इनपुट सेकंड पोजीशन, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 तक मुझे इनपुट करवाना है, मीन्स मुझे बार बार रिपीट करवानी है इनपुट स्टेटमेंट। और जब हमें बार बार रिपीट करनी होती है एक चीज़, तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम रिपीट करते हैं, हम फॉर रिपीटेशन क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लूप का, और वो कौन सी लूप है हमारे पास, फॉर की लूप है, ठीक है, फॉर की लूप हमने करवाई, इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है, हमने ए का वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, चाहो तो काउंट कर ले लो, चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे ए हमने रखा तो हम इनिशलाइज भी करवा देते हैं साथ साथ इसको ए को, ठीक है। नाउ सूडो कोड में हम असाइनिंग साइन हमारा ये वाला होता है, ठीक है, देन आप इसको 1 से लेके जाओगे कहाँ तक, करवाना है आपने 10 तक, ठीक है, सो 10 तक जाएगा, चाहें तो हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसको 1 से लेकर 10 तक नहीं चलाते, टोटल साइज़ हमारा 10 है, बट हम इसको स्टार्ट कर देते हैं अपनी इंडेक्स नंबर के साइज से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका ऊपर 10 ही लेना चाहिए उसको, तो चाहे तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करवा दें, और हम चाहें यहाँ पे एंड करवाएंगे 9 तक फिर, ठीक है, टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, तब भी हमारे 10 ही बनेंगे, टोटल 0 को भी काउंट करेगा, तो 0 से लेके 9 तक भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और चाहें तो आप 1 to 10 भी करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़, हमने करवाना क्या थी, इसके अंदर रिपीटेशन जो करवानी थी, वो स्टेटमेंट कौन सी थी, वो थी इनपुट की, तो यू विल राइट हियर इनपुट, इनपुट हमने लिखा, एंड देन यू विल राइट द एरे नेम, दैट इज़ एज, okay, square bracket open and close, and in the square bracket you will write here the variable of array, variable of loop a, ठीक है, ज़ाहिर बात है हम यहाँ 0 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो वो हमसे 0 की पोजीशन मांगता रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, हमने बार बार वो इससे लिंक करेगा, लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने a का वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, सो ये हो गया। अब नाउ हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट करवा देते हैं, तो ये हमारी इनपुट की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये चलता कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये हम ग्रेड 9 में भी कर चुके हैं, और 10 में भी किस तरह करते हैं कि 1 by 1 वो हमारा लूप जाएगा, पहले 0 को लेगा, 0 का इनपुट लेगा, फिर वो नीचे जाएगा, कोई स्टेटमेंट है और नहीं, नेक्स्ट, ऊपर जाओ वापस, ठीक है, इस तरह करके 1, फिर 1 पे चलेगा, नेक्स्ट इनपुट मांगेगा, चाहे तो हम यहाँ पे ही प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट लिखने, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही आप इनपुट करवाओगे साथ साथ वो प्रिंट भी करता जाएगा, फिर
फिर हमसे इनपुट मांगेगा, फिर प्रिंट करके दिखा देगा, फिर इनपुट मांगेगा, फिर प्रिंट करके दिखाएगा। आपकी डिपेंड करता है, आप अगर इस तरह का प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आप एक दफ़ा इनपुट ले लेता है वो चीज़ आपसे, फिर वो उसका डिस्प्ले में आउटपुट दिखाता है, ठीक है, इसको रन करवाता है। तो हमने सबसे पहले एक चीज़ इनपुट के लिए ली है हमने। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, सीखो यहाँ पे हम साथ ही साथ इसको यहाँ पे इनपुट को चेंज करके मैं प्रिंट लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर फर्दर कैलकुलेशन करवानी है तो चाहें तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं एक और लूप लेके, या वो आपकी रिक्वायरमेंट, जितना पहले आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना प्रोग्रामिंग को, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ इनपुट लेना होता है, कहाँ प्रिंट करवाना होता है, कहाँ कैलकुलेशन करवानी होती है। तो ये तो आती है चीज़ हमेशा किससे, प्रैक्टिस से, हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड है, ठीक है। सो हमने आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इनपुट और प्रिंट करवाना देखा है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे इसको मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं यहाँ से सी के कंपाइलर पे रन करवा के दिखा देती हूँ प्रोग्राम, ठीक है। सो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, अभी आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, सूडो कोड पे कॉन्सेंट्रेट करना बनाने पे, ठीक है। सो नाउ एंड ऑफ दिस लेक्चर, जज़ाकल्लाह।